چیف جسٹس پاکستان سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک میں عام انتخابات کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں عام انتخابات کے معاملے پر گفتگو کی گئی ہے، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے چیف جسٹس پاکستان سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ملاقات کی ہے اور 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے، تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ احمد فواد، طویل ملاقات جاری رہی ہے؟ جی بالکل، یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی جو ہے وہ آئے اور یہاں پر چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ جو ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز، یہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے، اور اس ملاقات کے دوران ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عام انتخابات کے معاملے پر جو گفتگو ہے وہ کی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے چیمبر میں یہ جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے، اور 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں عام انتخابات کے معاملے پر گفتگو کی گئی ہے۔ جی احمد فواد اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نگراں وزیر اعظم نے شہباز شریف کے پرنسپل سٹاف کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری نگراں وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہیں، جبکہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس اور پریس سیکریٹری اور کوارڈینیٹر سیاسی امور بھی بدستور برقرار رہیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے شہباز شریف کے پرنسپل اسٹاف اور پرسنل اسٹاف کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری نگراں وزیر اعظم کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے شہباز شریف کے پرنسپل اسٹاف کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری اور ای سیکریٹری نگراں وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہیں، جبکہ شہباز شریف کے پریس سیکریٹری اور کوارڈینیٹر سیاسی امور بھی بدستور برقرار رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا شہباز شریف کے پرسنل سٹاف کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعظم کے 4 افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت سامنے آئی ہیں، جبکہ پرنسپل سیکریٹری ملٹری سیکریٹری نگراں وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب۔ نعیم محبوب، اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کیجیے۔ جی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ پرسنل سٹاف کے طور پر کام کرنے والے 4 افسران کو اپنے ساتھ کام جاری کرنے کے لیے ان کی منظوری دے دی ہے، جس میں ان کے ساتھ پرنسپل سیکریٹری سابق وزیر اعظم کے، ملٹری سیکریٹری، پریس سیکریٹری اور جو ہے ان کے قریبی ساتھی آسیمہ سابق وزیر اعظم کے، وہ بھی سیاسی معاونت کے کوارڈینیشن کے حوالے سے ان کے ساتھ کام کریں گے۔ اور جو پرنسپل سیکریٹری ہیں سید تقریر شاہ ہیں، جو اپنی مدت ملازمت پوری ہونے تک نگران وزیر اعظم کے ساتھ کام کریں گے۔ اسی طرح پریس سیکریٹری ہیں جو انفارمیشن گروپ کے ہیں اکبر صاحب، وہ بھی بطور پریس سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ جی، ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب نے تفصیلات شیئر کی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ ممکنہ نام سامنے آ گئے۔ نگراں وزیر داخلہ کے لیے سرفراز بگٹی مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ انیک احمد کو وزارت مذہبی امور دی جانے کا امکان ہے۔ محمد علی کو نگراں وزیر اطلاعات بنائے جانے کی توقع ہے۔ نگراں وزیر خزانہ کے لیے شمشاد اختر اور وقار مسعود کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گوہر اعجاز کو نگراں وزیر تجارت کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کابینہ کی تشکیل میں مصروف۔ نگراں کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، اس حوالے سے متوقع نام بھی اب سامنے آئے ہیں۔ انیک احمد کو وزارت مذہبی امور دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ محمد علی کو نگراں وزیر اطلاعات بنائے جانے کی توقع۔ نگراں وزیر خزانہ کے لیے شمشاد اختر اور وقار مسعود کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا، معاملہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے نام اسپیکر کو بھجوائے گئے ہیں۔ جی ایک بار آپ کو پھر بتاتے چلیں، نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا، معاملہ کمیٹی کی سپرد کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے نام اسپیکر کو بھجوا دیے گئے ہیں۔
तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम पर इत्तेफाक अब तक नहीं हुआ है। मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। हुकूमती कमेटी में मीर अब्दुल कुद्दूस बेसिंजो, अब्दुल रहमान केतरान भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं। नई निगरान काबीना में टेक्नोक्रेट्स शामिल करने की तैयारी कर ली गई। साबिक चीफ सेक्रेटरी अताउल्लाह, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशफाक खान के नाम ज़ेर गौर हैं। पीटीआई हुकूमत और गुज़श्ता निगरान हुकूमत में शामिल हिमायतुल्लाह भी काबीना का हिस्सा होंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियत नादिर खान का नाम भी ज़ेर गौर है। पेशावर से खबर है, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की तश्कील, मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तंदही से काम करेगी। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कहा कि हम अमेरिका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं और खत्ते में इक्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म को कदर की निगाह से देखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुमीद है। अब बात होगी महंगाई के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का तूफान बरपा है। खाने पीने की अशिया की कीमतों समेत ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं। इस हवाले से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से। ज़िशान, ताज़ा सूरत हाल बताएगा मार्केट की। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि इसके असरात जो हैं, आफ्टर शॉक जो हैं, वो अब ज़िंदगी के हर शोबे पर आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सी अशिया जो हैं वो कल ही महंगी कर दी गई थी। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से पहला इजाफा सामने आया है कि मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनके किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर ट्रांसपोर्ट है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने भी अपने किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। तकरीबन 5 से 10% किराए जो है उसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर हजरात हैं वो भी खासे हमें परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका गुजारा भी ना होने के बराबर रह गया है। यहाँ पर मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा सूरत हाल जान लेते हैं। महंगाई का तो जहाँ तक ताल्लुक है, महंगाई ने तो इतना बुरा हाल किया हुआ है कि सुबह 9 बजे से हम खड़े हैं पैसेंजर के लिए। अल्लाह पाक इज्जत रख रहा है बस। अब मेंटेनेंस गाड़ी की बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गए हैं। रिक्शे वालों के लिए पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर से किराया बताओ तो वो किराया सुन के बेचारा चले जाता है। आदमी करे तो करे क्या। यहाँ पर रिक्शे वालों की भी मजबूरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो पैसेंजर हजरात हैं उनके पास भी दस्तरस नहीं है कि वो इतना महंगा किराया अफोर्ड कर सके। जो अंदरून मुल्क से गाड़ियाँ आती हैं शहर के अंदर, सब्जी फ्रूट लेकर आती हैं या फिर मुर्गी वगैरह लेके आती हैं, तो उनके किरायों में तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये का फी ट्रक इजाफा हो गया है। लिहाजा अब वो भी मजबूर हो गए हैं कीमतें बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अजनास की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफे का इम्कान जो है वो देखा जा रहा है। तामीराती सरिये की अगर हम बात करें तो तामीराती सरिये में तकरीबन 10,000 रुपये फ़ी टन का इजाफा कर दिया गया है, और अब सरिया जो है वो मार्केट में 2,80,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से दस्तियाब है। लिहाजा लोगों का यही कहना है कि वो अपने मुआश से मजबूर हो चुके हैं, रोज़गार है नहीं, और इसके ऊपर महंगाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो लोगों के लिए अब जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुआशी इस्लाहात जो है वो फौरी तौर पर लाई जाएँ ताकि आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। जी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ओगरा समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ओगरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमत कम हो रही है। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुफा इजाफे ने गरीब आवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे हुए आवाम ज़हनी अजियत का शिकार होने लगे। इस हवाले से देखिए अशरफ मेमन की रिपोर्ट। निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई की चिक्की में पिसी हुई आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अशिया खुर्दनोश की चीजों, दाल, आटा, घी के साथ साथ रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाली अशिया की कीमतों में भी दुगना इजाफा हो जाता है, को भी किराए बढ़ाने का मौका मिल जाता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। 300 रुपए में मैंने अभी तेल डाला तो 1 लीटर 1 पॉइंट का पड़ा। यार देखो कितनी महंगाई, पहले हम लोग परेशान हैं, गरीब लोग एक निवाला नहीं ले सकते पूरा दिन। पेट्रोल से हर शय महंगी होगी, पेट्रोल महंगा है तो हर शय बढ़ जाएगी, तो मेहरबानी करे पेट्रोल कम सोने पे सुहागा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ गया है। महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब आवाम का गुजारा मुश्किल हो गया है। गरीब आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। गरीब आवाम से जीने का हक छीना जा रहा है। आवाम ने हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अशरफ मेमन, ठट्टा अब तक। लाहौर में आपको लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इजलास से खिताब कर रहे हैं। हमेशा होते आए, इन दोनों ने एक एक मिनट की सूरत हाल को देख के मौके पे फैसले करके इनका ये था कि किसी भी सूरत किसी एक इंसान की जो जान ज़ाया हो जाए वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो इसका मैं इनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने एक प्लानिंग करके सबको सेव किया, और उसके बाद फिर एक और भी रात को वाक़या होने लगा, इन्होंने उसमें भी 1-2 लोगों की जान बचाई, सब कुछ किया। तो जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। तो आपसे ये मेरा वादा है, हमारी सारी टीम का वादा है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हम वो जितनी चीज़ें हैं वो हम वापस रिस्टोर करेंगे और उसी हालत में रिस्टोर करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीमें काम कर रही हैं उसके ऊपर। और दूसरा मेरा जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर रागिब नईमी साहब, मेरी इनसे हाफिज़ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें मुसलमानों को भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारा दीन हमें क्या कहता है, हमारे नबी ने हमें क्या पैगाम छोड़ा है, उसको ज़रूर उन तक पहुँचाएँ कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज़ के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा हम सब एज अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। के वाक़यात की गुंजाइश हरगिज़ नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। कहते हैं कि जड़ावाला का वाक़या बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मज़ीद कहते हैं कि जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबा बंदी के तहत किया गया है। इस पर पुलिस को क्रेडिट भी दिया और उन्होंने पुलिस ने प्लानिंग से जानी नुकसान होने से बचाया है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया 3 से 4 रोज़ में होने वाले तमाम नुकसान को पूरा किया जाएगा। ये भी मोहसिन नकवी ने वादा कर लिया। जड़ावाला का वाक़या बहुत अफसोसनाक है, जबकि इस हवाले से आपको बता रहे हैं जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबा बंदी के तहत किया गया। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया है। बाप है वतन अजीज के मारूसी हालात इस अमर के मुतकासी हैं कि तमाम मज़ाहिब और अदियान की लीडरशिप और दीनी शख्सियात कौमी यकजहती, मुल्की इस्तेहकाम, बैनुल मज़ाहिब, मुकालमा और मजमूई अमन व अमान के लिए हमेशा की तरह अपना असासी और कलीदी किरदार अदा करते रहें। हम हुकूमत पंजाब की वसातत से पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दफ़ाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह
और पूरी कौम के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक है। आज का ये इजलास जरावाला में रूनुमा होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम कुतुब समाविया की अज़मत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन की जो जसारत हुई इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके साथ चर्च के नज़र आतिश होने और इसमें बाइबल मुक़द्दस की तौहीन भी मज़म्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम अदियान और मज़ाहब की इबादत गाहों के तक़द्दुस और हुर्मत के भी निगाहबान हैं। जरावाला में मसीही इबादत गाहों की नज़र आतिश करना और मसीही बरादरी को आबादियों का जलाओ घेराव भी काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुत्तफिक है कि इस सानहा की आला सदा तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अजीज इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मज़ाहब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समरबार फरमाए। आमीन। नाज़रीन, हम दिखा रहे हैं लाहौर में बिशप नदीम कामरान बैनुल मज़ाहिब हमांगी इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया पेश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मजमूई अमन व अमान के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मजीद कहते हैं कि दिलखराश वाक़े की पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और आइंदा भी करेंगे। चर्च अमलाक को नुकसान पहुंचाने की भी मजम्मत करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।